أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربي زدني علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا، اب آج سے پہلے ہم نے جتنے لیسن پڑھے ہیں تو آپ سب کے پاس سب کے نوٹس موجود ہیں؟ آپ نے اچھے سے ان کو سمجھ لیا ہے؟ کوئی مشکل کسی لیسن میں تو نہیں ہے؟ اگر کسی کا کوئی لیسن رہتا ہے نا، کوئی آپ کا کوئی مس ہو گیا ہے، تو وہ آپ مجھے بتائیے گا، میں آپ کو اس کے نا دے دوں گی نوٹس نا، تاکہ آپ کی نا کوئی لیسن مس نہ ہو. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی ہمارے رہ گئے ہیں 8 لیسن. ٹھیک ہے، آج کی کلاس کے بعد 7 لیسن رہ جائیں گے. پھر انشاءاللہ ہمارا یہ جو لیول ہے، پہلا لیول 1 جو ہے ہمارا گرامر کا کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، گرامر کی چھٹیوں سوری دسمبر کی چھٹیوں سے پہلے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ سے کلاس سٹارٹ کریں گے نئے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور آپ لوگوں کا پھر میں ٹیسٹ لوں گی. ٹھیک ہے، تو ٹیسٹ کے بعد پھر آپ جائیں گے لیول 2 میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے پچھلے سارے لیسن جو ہے نا وہ ریوائز کرنے ہیں، اچھے سے ان کو یاد کرنا ہے. کیونکہ اب جو ہم آگے پڑھ رہے ہیں نا، جملہ اس میں ہمیں مرکبات کا استعمال، تو ہم نے چاروں جو مرکبات پڑھے ہیں اب ہم ان کا استعمال سیکھیں گے. ٹھیک ہے، جی. سر کی ویڈیو آپ سب نے سنی، سمجھ آیا؟ اس میں کوئی مشکل لگا؟ اسی کو ہم ایکسپلین کریں گے، دوبارہ سے اس کو کریں گے تاکہ آپ کو اچھے سے جو ہے سمجھ آ جائے اور ریویژن بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا لیسن ہے سبق نمبر ہے 20. لسان القرآن کا کورس ہم کر رہے ہیں اور اس میں ہمارا سبق نمبر 20 ہے، اور ٹاپک ہے آج کا جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال. عربی زبان میں مرکب اضافی کا استعمال سب سے زیادہ، یعنی آپ جب قرآن پاک بھی پڑھیں گے تو قرآن پاک میں مرکب اضافی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. جب بھی اسم کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مرکب اضافی ہے، اور بہت زیادہ، جیسے ربا، ہما، یعنی اس طرح ضمیر استعمال ہوتی ہے، اسم کے ساتھ ضمیر استعمال ہوتی ہے. جہاں بھی ضمیر آپ کو نظر آئے اسم کے ساتھ تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مرکب اضافی ہے. اور اسی طرح اگر اسم سے پہلے حروف جر آ جائے تو وہ جو ہے وہ مرکب جاری ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر اسماء اشارہ میں سے کوئی اسم سے پہلے آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی اسماء اشارہ کے بعد کوئی اسم ہو تو وہ مرکب اشاری بن جائے. ٹھیک ہے، یہ ہم اب تک پڑھ چکے ہیں. اسم کے بعد اگر صفت آ جاتی ہے تو وہ مرکب توصیفی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم اچھے طرح سے پڑھ چکے ہیں اور آپ کو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یاد بھی ہوگا. اچھا، ایک جملہ ہے جیسے کہ زید ایک لڑکا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ہم عربی کیا کریں گے کہ زید والد. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، معرفہ ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہمارا مبتدا ہوتا ہے اگر وہ واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، اگر وہ مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی. ٹھیک ہے، بلکہ دیکھ چکے ہیں یہ چیزیں ہم. اچھا، آپ کہیں گے کہ زیدن تنوین کے ساتھ ہے جبکہ معرفہ تو تنوین کے ساتھ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، لیکن
ये भी हमने पढ़ा है कि जो इसम अलम होते हैं वो तनवीन के साथ होते हैं, जो नाम होते हैं तनवीन के साथ होते हैं, ठीक है। क्योंकि जैद जो है वो इसम अलम है, ठीक है, इसलिए वो तनवीन के साथ आया। सही है। अच्छा, अगर इसकी जगह पे हम लेके आते, जैसे कि वलदुन सालिहुन, इसको हमने यानी कि लड़का जो है एक नेक लड़का है, या हम कहें कि जैद जो है एक नेक लड़का है, तो हम उसको क्या करेंगे कि वलदुन सालिहुन, ठीक है। लेकिन उसकी ये तो हमने सिंपल उसकी अरबी की ना, कि वालदुन लड़के को वालदुन कहते हैं और उसको सालिहुन उसको कहते हैं। तो ये तो हो गया कि क्योंकि हमने जैद का नाम लिया था, तो जैद एक लड़का है, ये नेक लड़का है, ठीक है। तो हमने कर लिया कि जैतुन वलदुन सालिहुन। लेकिन जब हमने इसको मारफा बनाना है, मरकबे तौसीफी जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि दोनों जो अस्मा है दोनों मारफा होने चाहिए, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि ये वाला दू को हम अलिफ लाम लगाएंगे, यानी अल लगाएंगे, तो वो बन जाएगा अल वाला दू, ठीक है, तनवीन खत्म हो जाएगी। और तवीलू जो होगा फिर हम उसको करेंगे अतवील, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, अल वाला दू तवील, ठीक है, ये बनेगा मरकबे तौसीफी। तो इसमें जो सिफ्त क्या होगी, तवील, तवील सिफ्त होगी, और मसूफ क्या होगा, वालतु मसूफ होगा। तो जो मरकबे तौसीफी होते हैं, मुब्तदा भी हो सकते हैं और खबर भी हो सकते हैं, यानी जुमले इस्मिया में मरकबे तौसीफी जो है मुब्तदा भी होंगे और खबर भी होंगे, ठीक है। अच्छा, अब तक हमने जुमला इस्मिया की जितनी भी मिसालें की हैं इन सब में मुब्तदा और खबर मुफरद, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं। बाज़ औक़ात जुमला इस्मिया में कभी मुब्तदा मुरक्कब होता है और कभी खबर, और कभी दोनों ही मुरक्कब होते हैं। मसलन लंबा आदमी नेक है, तो ये कौन सा मुरक्कब है, ये देखे ना, लंबा आदमी भी मुरक्कब तौसीफी बन गया और नेक आदमी भी मुरक्कब तौसीफी, तो ये दो मुरक्कब मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह कुरान अल्लाह का कलाम है, ये कौन सा, ये खबर है। और ये अल्लाह का कलाम, तो जिसमें का आ जाता है वो मुरक्कब इजाफी होता है, ठीक है ना, ये हमें अच्छे से इसका पता है, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया कि रसूल की अतात अल्लाह की अतात है, तो ये मुब्तदा मुरक्कब इजाफी यानी किया आ गया ना, रसूल की अतात, तो फिर अल्लाह की अतात, ये तो दो यानी मुरक्कब इजाफी बन गए, ठीक है। अल्लाह की अतात और रसूल की अतात, दो मुरक्कब इजाफी। अच्छा, मंदरजा वाला जुमलों का तर्जमा करने का तरीका भी वही है, यानी पहले मुब्तदा और खबर का तयन करना है, फिर मुब्तदा और खबर के मुतल्लिक ये मालूम करें कि आया वो मुफरद है या मुरक्कब है। अगर मुरक्कब है तो कौन सा मुरक्कब, फिर तर्जमा करें, ठीक है। जैसे लंबा आदमी नेक है, तो इसमें मुब्तदा क्या है, लंबा आदमी मुब्तदा, नेक है खबर, और ये कौन सा मरकब बना, मरकब तौसीफी, ठीक है। अच्छा जी, इसको ऊपर करूंगी ना मैं, ये तो बिल्कुल ही घोषणा गया, एक मिनट इसको छोटा करते थे। अच्छा, अब हम इसका तर्जमा करेंगे जब, तो हम आदमी का तर्जमा क्या करेंगे, क्योंकि हमने मरकब तौसीफी बनाना है तो उसको हमने मारफा रखना है, तो हम करेंगे अर रजुलु अत-तवील, ठीक है। तो खबर हमने नकरा रखनी है तो उसको करेंगे खाली, ठीक है, नेक है सालिह। इसी तरह फिर दूसरा जो जुमला है उसमें के कुरान, यहाँ कुरान अल्लाह का कलाम है, तो कुरान क्या है, मुब्तदा है, अल्लाह का कलाम क्या है, खबर है। तो कुरान जो है मुफरद है और अल्लाह का कलाम मरतबे इजाफी है, ठीक है। अल कुरान, इसकी अरबी करेंगे हम कुरान की, अल कुरानु कलामुल्लाह, ठीक है।
अच्छा, ये नजर नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा ऊपर करो। अच्छा, अब ये जो तीसरा जुमला था कि रसूल की अतात, अल्लाह की अतात, तो ये रसूल की अतात हो गया मुब्तदा, और अल्लाह की अतात खबर हो गया। अब ये भी मरकब इजाफी, मुब्तदा भी मरकब इजाफी हो गया, और जो हमारा जो खबर थी वो भी मरकब है। तो इससे क्या साबित हुआ कि खबर भी मरकब हो सकती है और मुब्तदा भी मरकब हो सकता है। ठीक है। तो अतात की अरबी है इता, क्या है, अता अतु अर रसूल, यानी अल्लाह की रसूल की अतात, इता इताअतुल्लाही, अल्लाह की इतात। ठीक है। तो ये दोनों मरकब जो है उसमें जुमले में इस्तेमाल। अच्छा, ये उर्दू की कुछ वो सेंटेंस दिए हुए हैं कि इसको हम एग्जांपल्स यानी कि उसके लिए। अच्छा, सबसे पहले जो है आपको इसमें हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने देखा कि मुरक्बे तौसीफी, तौसीफी में क्या करना है कि हमने दोनों अस्मा को मार्फा बनाना है। ठीक है, अलिफ लाम लगा के मार्फा बनाना है अगर वो लगता है। ठीक है। और मरकबे इजाफी का तो आपको पता ही है, मरकबे इजाफी की पहचान क्या है, मुजाफ की पहचान क्या है। मुजाफ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मुजाफ की पहचान। ठीक है, उसमें क्या आपने याद रखना है कि जो मुजाफ है उस पर अल नहीं होगा, तनवीन नहीं होगी, सिंगल हरकत होगी। और मुजाफ अलैह की क्या निशानी है, क्या हमने कैसे पहचानना है कि अल लगा होगा उस पे, हमेशा मजरूर होगा। ठीक है, ये दो निशानियों से हम पहचानते हैं कि ये जो इसम मजरूर है ये क्यों है, क्योंकि ये मुजाफ अलैह है। ठीक है। तो ये पहचान आपने याद रखनी है ताकि आप मुरक्कब इजाफी को पहचान सकें। अच्छा, नकरा इसम को मारफा की जो पहली पांच अकसाम है, इनमें से किसी के साथ अगर रिलेट कर दिया जाए तो वो नकरा भी मारफा हो जाता है। ठीक है, यानी हमने इसम मारफा की जो अकसाम पढ़ी थी ना, सात अकसाम पढ़ी थी, उनमें से जो पहली पांच थी उसमें कौन कौन सी थी? इसम अलम, जमीर, इशारा, मौसूल, मुरबिल्लाम, और मुजाफ इलल मारफा। ठीक है, ये हमने छठी जो हमने छोड़ी थी ना, हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये फिर इन पांचों को जब किसी इसम के साथ, नकरा इसम के साथ रिलेट किया जाता है, यानी या ऐसे कह लें कि जब किसी नकरा इसम को इन पांचों में से किसी एक इसम के साथ रिलेट किया जाता है तो वो बन जाता है मुजाफ इलल मार्फ। ठीक है। उसकी क्या एग्जाम्पल इस तरह से है कि जैसे वालदुन, तो वलदुन हम कहते हैं एक लड़का, तो वलदुन नकरा है ना, लेकिन जब हम उसको कह देते हैं कि वलदु जैदिन, जैद का लड़का, तो वो बन जाता है जैदिन। क्या है हमारा मुजाफ, यहाँ पे मुजाफ की जगह पे आ रहा है, लेकिन वो क्या है, इसम अलम है। ठीक है। तो वो हो गया तो हम वालादुन की तनवीन खत्म करेंगे, हम लिखेंगे वालादु जैदिन। ठीक है, यानी एक नकरा इसम था ना वालादुन, उसको जब हमने रिलेट किया जैदिन के साथ, जैदुन था जैदिन, लेकिन जब वो मुजाफ अलैह की जगह पे आया तो उसकी हमने मजरूर उसको किया। ठीक है। तो अगर इसी की हम एग्जांपल लें कि जमीर अगर लग जाए, वालादुन के साथ जमीर लगाएंगे तो वालादु जो है वो उसकी तनवीन खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने जमीर आगे लगा ली, तो वो बन जाएगा वालादु हु, यानी वालादु हु, उसका लड़का। ठीक है, तो ये जमीर के साथ हो गया, तो ये भी मार्फा हो गया। फिर हम इशारा के साथ करें तो वालादू हाजा के, ये लड़का, लड़के की तरफ से जब हमने इशारा किया तो वो भी मार्फा हो गया। फिर अगर हम उसको इस मौसूल के साथ रिलेट करते हैं कि हम कहते हैं वालादुल्लाजी, वो लड़का जो, या वो लड़का जो, ठीक है ना, वो जो लड़का है। इस तरह से जब हम करते हैं तो इसम मौसूल यानी अल्लाह से साथ लगाते हैं तो फिर वो मार्फा हो जाता है। ठीक है। इसी तरह मोरो बिन नाम, यानी अगर हम वालादू को
किसी मौरूफिल नाम वाले इसम के साथ जोड़ते हैं, जैसे वलदुल अल मुस्लिम, लेकिन हम इसको जब मिला के पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे वलदुल मुस्लिम। ठीक है, तो ये मुरब्बिल नाम के साथ जोड़ दिया हमने। ठीक है, तो ये बन जाता है, ये छठी किस्म उसकी हमारी बनती है इसम की, इसम मार्फा की, मुजाफ इलल मार्फा। ठीक है, अच्छा, जो इसम हमने पढ़ा है मरकब इशारी। मरकब इशारी हम पढ़ चुके हैं कि उसमें एक अस्माए इशारा होता है और दूसरा जो है इसम होता है वो भी मार्फा इसम होता है, यानी इसमें इशारा मार्फा है तो जो हम उसके साथ इसम लेके आएंगे वो भी मार्फा होगा। तो जब वो जुमले में इस्तेमाल होगा रकबे इशारी, तो वो मुब्तदा की जगह पे आता है, यानी जब जुमले में मरकबे इशारी आएगा तो वो मुब्तदा की जगह पे आएगा, खबर की जगह पे नहीं आएगा। ठीक है, जैसे जुमला है हाजा हाजल वालतु सालिहुन, हाजल वालतु सालिहुन, ये लड़का नेक है। ठीक है, अच्छा, ये तो अगला टॉपिक है। सिंपल जुमला जैसे आप करें, जैसे आप कहते हैं कि ये हमने पहले भी एग्जांपल की कि जैद नेक है। ठीक है ना, इसको तो हमने वैसे ही करना है कि जैदुन फालिहुन। ठीक है, यानी उसको हमने अलिफ लाम नहीं लगाना, क्योंकि आपको पता है कि जो इसका मतलब है उनके साथ अलिफ लाम नहीं लगता। कुछ नाम हैं जिनके साथ अरबी दानों ने लगाए हैं तो उनके साथ लगता है, हर यानी इसका मतलब के साथ जो है अलिफ लाम नहीं लगता। ठीक है, अच्छा, एक और एग्जांपल हम करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इसम उसकी करते हैं मरकबे इशारी कि ये नई कलम है या ये कलम नया है, तो उसको हम क्या करेंगे, ये की क्या अरबी होगी, हाजा। ठीक है, कलम की अल कलम। ठीक है, तो हम इसको मिला के पढ़ेंगे हाजल कलम। नए की क्या होगी, जदीदुन, हाजल कलम जदीदुन। तो हाजल कलम मुब्तदा हुआ, जदीदुन नकरा है, खबर। ठीक है, तो ये है हमारी एग्जांपल के मरकबे इशारी जो है वो मुब्तदा बनते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम उसमें इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे मरकबे इशारी आ गया, हाँ हाँ ठीक है, मरकबे इशारी की ये थी, और मरकबे तौसीफी की भी हमने एग्जांपल की। ठीक है, और मरकबे इशारी आपको मैंने बताया कि मुब्तदा के तौर पे आता है, खबर नहीं करता। लेकिन जो मरकबे इजाफी होते हैं वो मुब्तदा भी बनते हैं और वो खबर भी बनते हैं। ठीक है, और उसकी हमने एग्जांपल भी की। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, एक दफा मैं रिवाइज कर देती हूँ। आज वो मैंने कंप्यूटर से ही वो किया है, तो इसमें ना मैं बोर्ड पे शायद मैं ना लिख सकूं, क्योंकि इसमें मेरी प्रैक्टिस नहीं है इससे लिखने की, मुझे दूसरे उसकी आदत थी, उससे मुझे लिखना इजी था, तो इसलिए मैं लिख के आज प्रैक्टिस नहीं करवा सकती, आपको माजरत चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक मेरा वो दूसरा सही हो जाएगा तो फिर मैं उसी पे क्लास लूंगी। ठीक है, अच्छा, आज हमने जो पढ़ा कि जुमला इसमें में मरकबे इजाफी क्या बनकर आता है। मरकबे इजाफी मुब्तदा और खबर दोनों सूरतों में आ सकता है। ठीक है, इसके हमने एग्जांपल भी दी, जैसे कलामुल्लाही हक्कुन, अल्लाह का कलाम सच है, हक है। फिर जो दूसरे इसकी एग्जांपल है अल कुरानु कलामुल्लाही, यानी देखें अब कलामुल्लाह जो है मुब्तदा की जगह पे भी आ रहा है और खबर की जगह पे भी आ रहा है। ठीक है, ये मरकबे इजाफी का है।
کہ یہ دونوں ایگزامپلس اس طرح سے آپ نے تلاش کرنی ہے، آپ قرآن سے ایگزامپل تلاش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر ہم نے پڑھا کہ نکرہ اسم معرفہ کی کن اقسام کے ساتھ ریلیٹ ہو کر آتا ہے؟ جو میں نے 5 آپ کو بتائیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، ورب اللہ، ٹھیک ہے؟ یعنی اسم جو نکرہ اسم ہے وہ اسم معرفہ کی ان 5 اقسام کے ساتھ ریلیٹ ہو کر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ مرکب اشاری جملہ اسمیہ میں مبتدا بن کر آتا ہے، تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ مبتدا بن کر آتا ہے یا خبر بن کر آتا ہے۔ تو میں نے آپ کو اس کا بھی بتایا کہ مبتدا بن کر آتا ہے، اور اس کی ایگزامپل ہم نے کی کہ حاضل ولد صالح۔ آپ نے اس کی ایگزامپل یہ نہیں دینی، کوئی اور دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے پاس سے دینی ہے مرکب اشاری کی، کہ مرکب اشاری مبتدا بن کر آتا ہے جملہ اسمیہ میں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اور مرکب توصیفی جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر دونوں بن کر آتے ہیں، اس کی آپ نے ایگزامپلس تلاش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن سے تلاش کریں، اگر نہیں تو پھر آپ اگر خود سے لکھ سکتے ہیں تو خود سے۔ اچھا، یہ پھر ہے کہ کون کون سے مرکب مبتدا بن سکتے ہیں؟ مرکب اضافی جو ہے مبتدا بن سکتا ہے، مرکب اشاری مبتدا بن سکتے ہیں، اور مرکب توصیفی بھی مبتدا بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مرکب اشاری اور مرکب جاری خبر بن کر آتے ہیں؟ یہ میں نے سوال رکھا ہے کوئز میں۔ مرکب اشاری مبتدا بن کر آتے ہیں اور مرکب جاری خبر بن کر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن جو ہے مشکل نہیں لگا ہوگا، آسان لگا ہوگا، اور ہوم ورک آپ ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اپنے لیسن جو ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں ان کو بھی آپ ریوائز کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ اچھا سا ٹیسٹ دیں۔ تو چلیں، آپ دعا پڑھ لیتی ہوں اور کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو خوش اور آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ وعلیکم خیر، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ گروپ میں پوچھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ اب میں اینڈ کر